team is this team is convenient actually. There is no time limit and all. होता है ना, बट तुम नहीं चेक करोगे, तुम ट्रेड प्रोसेसिंग जो करते हो तुम चेक नहीं करोगे वहां पे। जो कैश टीम होती है, ठीक है, कैश टीम होगी या फिर रिकॉन टीम होती है, कैश रिकॉन, कैश रिकॉन, हाँ है ना, है ना, कैश, यस, कैश रिकॉन एंड कैश टीम एक पोर्शन होता है जिसमें तुम यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? एजेंट, एक्चुअली एजेंट, पेमेंट कौन प्रोसेस करता है? एजेंट, राइट। जो द एंटिटी हु इज वर्किंग एज अ मिडलमैन बिटवीन बायर एंड सेलर। एक, अरे कुछ भी कहो, नाम अलग है बट कुछ भी कहो तुम, एजेंट एजेंट है अभी वो, उसका कुछ है नहीं रूल। ये पेमेंट रिलीज करता है क्योंकि इसी के पास तुम्हारा होल्डिंग है ना। ये जब तुम बाय भी करोगे इसी के थ्रू करते हो, सेलर सेल कर रहा है तो इसी के थ्रू कर रहा है, मतलब ही वर्क एज अ एजेंट और मिडलमैन बिटवीन फॉर बोथ बायर एंड सेलर. So once you confirm that you are ready to sell this quantities and buyer confirm yes I'm ready to buy this, then you should keep ready the fund in your account. Let's say the 10 rupees per quantity, and even the seller is ready to sell the their stock 10 rupees per quantity. So you have a price, right? So rupees, it means it's a price, let's say. So now the total amount, quantity into, so agent will debit. Even here you can see the accounting entries as well, so it's again very important. So all the the entire framework that we have done yesterday in our system, so it's a part of recording, and we are doing that because we want those transactions in our books of account, means in your buyer or seller's books of account. Okay, let's say suppose you're working with HSBC, and in this case HSBC is the buyer, and let's say the CT and their team is the seller, and the agent is, let's say, JP Morgan. Now in this case, the JP Morgan, because he's managing the accounts for CT and HSBC, so agent on a settlement date on SD, once the trade gets settled, then the settlement, it means eventually your the positions will be credited in the HSBC account, and the, the again cash will be debited. This amount will be debited from the buyer's account and credited to the seller's account. So that actual processing part we called settlement. Okay, and so once the agent released this, let's say the amount, this amount has been debited now, and there is no balance. So it means in your account, if you do sum, zero, because the amount has been debited, because the proportionately the positions will be credited in your account, which is 1000, right? Hmm. And here the amount will be credited. So in this case, buyer will release payment wire. Wire is nothing but it's just instructions pro forma.
or contract information, how many quantities are there, what is the price per quantity, what is the total amount or entire value of a particular contract. So you can verify all the details there, and you can match your transaction, open transaction, because as a cash team or as a recon team, what we do there, we match the transactions. Like suppose you're at a buyer side, and there you can see the sale transaction is open, and now the agent process payment to you, so it means you have received payment as well. So you can match the transactions against each other, and once you match, your recon will complete. ओके, ये होता है सेटलमेंट डेट के दिन, ये एक्टिविटी पूरी होती रहती है, क्योंकि ऑनगोइंग बेसिस पे साइड बाय साइड यहाँ पे तुम ट्रेड सेटल करते हो, एंड उन्हीं के पास भी सेम डेटा आता है। अगर तुम सेटलमेंट मिस करते हो तो ये टीम आके तुम्हें इन्फॉर्म भी करती है, वायर पेमेंट का स्निप देती है, और या फिर जो वायर पेमेंट की डिटेल्स भेज दिए, हे गाइस वी हैव रिसीव्ड इट। क्योंकि जब अगर तुम ये सेटल्ड नहीं करते हो, स्टिल ट्रेड अगर ओपन दिख रहा है, तो वो मैच नहीं कर पाते वहां पे, क्योंकि मैचिंग जो होती है तुम्हारे, मतलब जैसे ट्रेड सेटल्ड हुआ तो उनको स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाता है, सॉरी लेजर अवेलेबल हो जाता है मैच करने के लिए अगेंस्ट स्टेटमेंट, ऐसे दिखता है वो। एक स्टेटमेंट दिखेगा, एक लेजर दिखेगा, लेजर का भी ओपन बैलेंस दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी दिखेगा, जितना क्वांटिटी है, एंड इस लेजर में भी सेम दिखता है। हम्म। नहीं, अरे तुम सेटल करते हो, मतलब तुम अपने सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम में डेट डाल के उसको क्लोज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कंसेंट आना तो बाकी है, तुमने कैश रिसीव्ड किया नहीं किया, तुमने कुछ रिसीव्ड किया नहीं, जस्ट तुम्हें इंस्ट्रक्शंस आए कि वो सेटल्ड स्टेटस में रख दो, ठीक है, सिर्फ लॉक करो ट्रांजैक्शन। बट एक्चुअली कैश टीम के पास उसके वायर इसलिए आते हैं ताकि ब्रोकर ने एक्चुअली पेमेंट किया हुआ है, एंड अब जाके वो मैच होगा। बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन होता है कि मैं सेटल कर रहा हूं तो नहीं, सेटल सेटल हम कर रहे, सिर्फ हम डेट डाल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो जो बुक्स होता है ना, जो ट्रांजैक्शंस ओपन है ना, उसको हम क्लोज कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो हाँ, तो होता है ना कि तुमने तुमने सेटल, अगर तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ सेटल किया तो कुछ ज्यादा बिग इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि तुमने सिर्फ अकाउंटिंग, तुम्हारा खुद का बुक क्लोज किया हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज फॉर योर ओन अकाउंटिंग पर्पज। तो उस केस में उनके यहाँ पे जो उनका जो अपना, जो तुमने सेटल करने के बाद तुम्हारा जो लेजर क्रिएट होता है ना, यही सिर्फ दिखने लगता है, ठीक है, यही एक दिखने लगता है। ये स्टेटमेंट दिखता नहीं है, उसका बैलेंस भी ये दिखता नहीं है। तब वो तुम्हारी कैश टीम जो होती है, या फिर अगर तुम खुद कर रहे हो, तो तुम्हें फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन ये होगा कि तुम समझो, वो अगर ट्रेड्स, इफ आई हैव सेटल्ड इट, देन यू विल एस्केलेट दैट टू मी एंड आस्क इट, हे व्हाई डिड यू सेटल दिस, कैन यू प्लीज प्रोवाइड बैकअप टू दिस, बिकॉज वी डिड नॉट सी the payment or wire payment from the agent। ये कैंसिल, फिर कैंसिल होगा, दो ही चीजें होगी फिर, एक तो ये इनवैलिड, मैंने गलती से सेटल कर दिया है, या फिर, हाँ, या ट्रेड ट्रेड एक्टिविटी को, ट्रेड को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है, पहले बात को समझो इस चीज को। देखिए, ट्रेड ऐसे तुमने रिकॉर्ड क्रिएट किया, जब तक सेटल नहीं होता उसका कुछ मतलब नहीं होता है। हाँ, तो सेटल कर दिया तो लेजर ओपन होता है ना तुम्हारा। हम्म। 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 तुम वहां कैश एक्टिविटी में अगर काम करोगे तो कैंसिल तुम कुछ नहीं कर सकते, वो क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्शन तुम सिर्फ मैच करने का तुम्हारे पास
अधिकार होता है वहां पे, वैसे सिस्टम बिल्ट ऑप्शंस होते हैं। तुम क्या करोगे, सिर्फ जिसने भी वो सेटल्ड किया ना उसको एस्केलेट करो, सिंपल। जैसे कि अभी मैंने सेटल किया, तो जब मैं सेटल करूंगा तो ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया, तो तुम मुझे चेंज करोगे भाई, देखो इसका स्टेटमेंट नहीं आया, जैसे मतलब पेमेंट नहीं आया, सो इसका मुझे, तुमने सेटल किया तो उसका मुझे बैकअप प्रोवाइड करो कि क्यों सेटल किया। हम्म। हम्म। वेट 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 वेट, दो चीजें मर्ज मत करो। जैसे कि कैश एक्टिविटी भी ट्रेड प्रोसेस, ट्रेड सेटलमेंट का ही पार्ट है। ट्रेड सेटलमेंट और वो अलग अलग कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली तुम्हारा जो सेटलमेंट, दो फंक्शंस यहाँ पे लिटिल बिट जो डिफरेंस आता है, एक तुम डेट डाल के सिर्फ बुक क्लोज करते हो, दूसरा वहां पे एक्चुअली एजेंट पेमेंट प्रोसेस करता है। बट इवेंचुअली देखा जाए तो वही जो पेमेंट आता है ना, वही तुम्हारा सेटलमेंट एक्टिविटी है। बट एज पर प्रोसेसेस जो बिजनेसेस जैसे हम रन करते हैं चलाते, तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं, उसको रिकॉन कहेंगे या फिर कैश टीम कहेंगे, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कैश आता हुआ दिख रहा है। बट एक्चुअली कैश आना, कैश प्रोसेस होना, वही सेटलमेंट है। अभी तुम मुझे लॉजिक बताओ, जो पीछे वाला छोड़ दो, अगर तुम्हें कंसेंट नहीं आया तुम्हारे बुक्स में, तो तुमने सेटल करके डाला, इज इट वैलिड ट्रेड? तो तुम्हारा, चलो ठीक है, तुमने इतने सारे केपीआईटी के परचेस दिखा दिए, परचेस तो किए, ट्रेड किए दिखा दिए, ये ट्रेड डेट है, बट T+2 पे सेटल्ड ही नहीं हो रहा है। बाय किए लेकिन सेलर बेच ही नहीं रहा है उतने प्राइस से, क्योंकि इवेंचुअली उसका प्राइस ज्यादा हुआ रहेगा, इसलिए अब उसको लग रहा है कि ये मैं 460 से क्यों बेचूं, अभी तो 550 कुछ तो चल रहा है, तो मैं क्यों फिर बेच दूं, नहीं बेचूंगा मैं, उसने कैंसिल करवा दी डिलीवरी। अभी तुम क्या करोगे, इसको तुम अज्यूम कर लोगे कि नहीं मुझे आ गई क्वांटिटी, मेरे अकाउंट से पैसा भी जाना चाहिए, तो तुमने अपना बुक सेटल करके रख दिए। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि तुम्हारे पास तो क्वांटिटी आई ही नहीं है। सेटल्ड होने का मतलब यही है कि तुम्हें एक्चुअली कुछ आ रहा है। बट ये जो तुम करते हो ना, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, दो एप्लीकेशंस यहाँ पे शैडो अकाउंटिंग का जो पार्ट बोलते हैं ना, कि जैसे मैं कुछ ये शैडोइंग कर रहा हूँ ट्रांजैक्शंस की, मुझे वहां पे पेमेंट आ रहा है तो मैं यहाँ पे स्टेटस, या फिर जो आएगा पेमेंट तो मैं अपना स्टेटस वहां पे रख दूंगा कि जैसे सेटल्ड हुआ, अनसेटल्ड है, ओपन है, मैं स्टेटस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अकाउंटिंग के पर्पज से चीजें ट्रेस करने के लिए इजी जाएगा। हाँ आता ही है, आता ही है। ठीक है, साइड बाय साइड एक ही सेम कैश आता है वहां, इसलिए ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेटल्ड होते रहते हैं। बट अभी जो जैसे कोई बंदा अगर एक टीम में काम कर रहा है ना, सेम टीम में अगर सेम फंक्शंस दोनों एक ही, मतलब दोनों फंक्शंस अगर एक बंदा डील कर रहा है, तो वो देखेगा करेगा, देखेगा करेगा। बट अगर अलग अलग टीम्स है, तो वहां पे ये होता है ना फंडा की, वो जो डॉक्यूमेंट आता है, जो मैंने बोला कि फंडिंग मेमो होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, मेल पे मिलेगा पीडीएफ में, तो वो कंसिडर करके सेटल करता रहता है। वो जाके पेमेंट, वायर पेमेंट या फिर जो चीजें नहीं देखेगा, बट जो एक्चुअली कैश टीम होती है वो साइड बाय साइड वहां मैचिंग कर रही है, धनाधन वो मैचिंग परफॉर्म करती है, दिन भर मैच करती रहती है तुम्हारे ट्रांजैक्शंस। हाँ, सेटल्ड, सेटल्ड होने के बाद ही तुम्हें मैच कर सकते हो, नहीं तो अनसेटल्ड का मतलब है कि उनके क्यू में ट्रेड जाता ही नहीं है। आ चुका है, एंड उस सेटलमेंट डेट से तुम्हें बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन से तुम्हारे, इवेंचुअली तो जब तुमने ट्रेड कर दिया उस दिन से ही तुम उसके मालिक हो। बट सेटलमेंट डेट है कि कंफर्म हुआ कि अब वो पोजीशंस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अकाउंट में है, अब इसके साथ तुम जो कुछ भी करो, तो तब जाके फिर तुम्हें बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी ये कॉर्पोरेट एक्शंस है, तुम्हारे इनकम, डिविडेंड है, इंटरेस्ट पेमेंट है, जितने भी है, वो तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई ट्रेड होने के बाद डिले मत करा उस ट्रेड सेटल करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह कुछ भी बेनिफिट्स रहेंगे तो मिस हो सकते हैं। इट्स अ कैश इम्पैक्ट, समझ रहे हो? हाँ। तो सेटलमेंट का, जैसे कैश प्रोसेसिंग का महत्व उतना ही सेटलमेंट का है। दो चीजें साइड बाय साइड काम करती है, तुम उसको ऐसे अलग अलग तरह से नहीं देख सकते कि मैंने तो कल सेटलमेंट देखा और अब कैश नहीं। सेटलमेंट
तुम्हारे अकाउंट में जब सैलरी आता है, कंपनी बोल रही है कि तुम्हें मैं सैलरी दूंगी या फिर दूंगा जो भी है, बट जब तक नहीं आता तब तक उसका कुछ वैल्यू है क्या? तुम ऐसे ही अक्रूड इनकम की एक एंट्री मार के रखोगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी तुम्हें कंसिडरेशन आने वाला है इनकम का, तो तुम वैसे एंट्री बना के रख दोगे इनकम की। बट जब तक वो आता ही नहीं, कैश जब तक आता नहीं तब तक उसका कुछ वैल्यू है नहीं है। जब आता है इट मीन्स कि तुम्हारा सैलरी सेटल्ड हुआ तुम्हारे अकाउंट में, तब जाके तुम उसके खर्चे करो, सेविंग करो, उड़ा दो, जो करना है करो। तो वैसे ही सेटलमेंट का है, उसके बाद तुम कुछ भी करो। एग्जैक्टली क्योंकि फंडिंग नहीं होती है, तो तुम अपने अकाउंट में सेटल करके कुछ फायदा है क्या? तुमने क्योंकि तुम्हें वेट करना, देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस बचेंगे, हमेशा याद रखना। हाँ, एक तो तुम सिटी बैंक को रीच करो या फिर एजेंट को रीच करो। यहाँ यस, ओपन ही रहेगा ना, वो सेटल करने की जरूरत नहीं, ट्रेड तो कर दिया है बस, ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो तुम क्या करोगे, इमीडिएटली कॉल करोगे उसको, मेल करोगे, अपना डिटेल से भेजोगे, भाई इमीडिएटली कंफर्म करा कि फंडिंग कब अवेलेबल हो रही है, फंडिंग कब हो रही है, या फिर ये मुझे पोजीशंस कब, अगर तुम बायर हो तो मुझे पोजीशंस कब मिल रही है, पोजीशंस अभी भी दिख नहीं रही है। हो सकता है कि बोलेगा वो थोड़े से शॉर्ट है, वेट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अभी एजेंट है, उसने कहीं दिए रहेंगे थोड़े टाइमिंग के लिए, कुछ भी होता है भाई आजकल, कुछ रूल्स नहीं है ऑन डॉक्यूमेंट रूल्स है, बट एजेंट कुछ भी करते हैं बीच में। हाँ, एक्सेप्शंस वो, जैसे कि कुछ चीजें होती है, ठीक है, कुछ चीजें यानी कि तुम्हारा समय जा रहा है, अभी डेडलाइन पास हो रहा है एंड नहीं आ रहा है, तो तुम उस केस में तुम्हारा एनएवी में जो भी ट्रेड का वैल्यू दिख रहा है, करंट वैल्यू दिख रहा है, वो लेके तुम लॉक करके कर सकते हो। एंड उस ट्रेड्स के आगे कमेंट्री देनी होती है मुझे। So we are chasing to the agent or to the respective counterparts to get the confirmation on this particular transaction. So once we received confirmations, we'll adjust the value proportionately in the asset or that the trade, जो भी बट एज ऑफ नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस, जो भी एज पर ओरिजिनल ट्रेड डिटेल्स है उसके हिसाब से वी आर कंसिडरिंग दिस। 99.99% केसेस में चेंज कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सम टाइम होता है ना कि जैसे उन्होंने कैश की जगह चेक पेमेंट लगा दिया है, हो, हो, होता है ना, डिले क्यों होता है, ये भी समझो। अभी देखो कैश पेमेंट में इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड बी द चैलेंजेस? मैं ये एक्सेल तुम्हारा ही बना रहा हूँ उसमें, ठीक है, ये चैलेंजेस देखो, अभी डिले जब होता है या फिर so what are the challenges? Sometime counterparty can deposit check payment, and in such a case it will take at least 4 days to clear it. But what information that you required to get the confirmation or to consider the value? First of all, agent's confirmations that CPT submitted or deposited the check, correct? And the amount, for how much amount the counterparty deposited the check. And the another one is the clearing date, so when it will be cleared and deposited or credited the amount in my account.
This is the one, reason that you can. Yeah, when the check will cleared, then only you can, yes, match your statements, ledgers, and you can declare it. Yes, this particular transaction has been settled now. The another one is sometime that happened, partial payment received. Okay, because you have a, so here let's say you have a ledger worth of rupees 1000, and the statement that you are seeing, which is around, so it means you have received short cash payment. In this case, there is a possibility that the agent charged fees or extra charges on that particular transaction. Agent fees applied. In such a case, you cannot pass or match this transaction. So you need to escalate this to the CPT and ask for the payment which you are on a short by, like in this case particular 500, and you can mention them, yes, the agent charge fees around 500, so it's your transaction fee, otherwise will not be able to settle this trade due to the short compensation that we have received. Okay, agent fees, then the other transaction fees, or maybe sometime there is no fund availability, no enough fund available in the account of CPT. And even the same applies to the agent side as well. If the amount is very high, like let's say 1000 crore, maybe 100 crore, 200 crore, at a time it's a bit difficult to make the funds available to the agent as well as to the counterparty, right? So in such a case also, you will have to hold for a time being to get fund in your account. Right. So these are the scenarios you can definitely see in cash team or cash processing team, or maybe the while settling the trades, that the you have not received the commitment, you have not received the fund or enough fund, and all such words that you can see in the settlement process or cash process. Yes, it's a wire payments. See, there are ways, mode of payments. Wire, it means they process payment on a centralized number, which is IBAN. It's a 19 digit or 24 digit number. Start with the country's initial. Like for India, it's start with I. International Bank account number, IBAN. Okay. For Indian bank account number, Israel bank account number, like that. IND, start with IND, IBAN. Okay. It's centralized number. So you in such a case, you don't need to put the account number, big code, then the other issuer name and all. Directly enter the 19 digit number in your account and make the payment. Simple. Okay. It's like direct payment.
Yes, yes. And the another one is bank transfer. Yes, RTGS or account to account transfer. Then NEFT is correct. This is also direct payment, but you required like the other details, big code, bank identification code, then account number, yes, then branch code. See, even in the wire payment, you can see the details like issuer name, ISIN. There is a classification which is fields, field 71, 72, 73, 71, 72, 73. I'll tell you all this what is 72, 70, uh, 3 and 4 in a corporate action session, because there also you can see the task like processing a corporate action payments. Those are like numbers. Here 71 it means the buyer details should be there, account details. Then 72 it means seller details should be there. Then it's a field name. It's like uh what I would say. Those are the fields. Okay, fields it means if you are aware about the Swift payments. Yeah, yeah. That is what we'll discuss that in a corporate action session. Okay, it's a Swift. It means it's a network. Okay, so you can use their facility to transfer the payment from one account to another. But it's like they don't transfer anything, so they provide the message service like once the payment get credited, so that the payment details will be converted into message, and the message will be transferred from one counterparty to another, and that is safely. Only you can see that message, right? It's a way of to communicate financial transactions. So you can consider that. So you have received payment, you can take a snip of that particular swift and you can attach in your Excel sheet and you can process the payment, right? For example, once you get a salary credited in your account, the network provider they sent message to us, correct? Your salary has been credited the same way, and then we assume it, yes, we have received it. And even we do recon as well, whatever message what we have received, we check with that the whatever balance is there on the salary slip, and even we will have a confirmation that we have received salary, right? Once we look to the message. The same way here in this financial world, there are a few service providers. They sent message to the counterparts, and if you get a message, then you can assume that you have received payment in your account. That's it, and you can process the transactions or you can settle the transaction. See, eventually, the truth is everything is happening via account to account. It means bank to bank they are transferring, but for accounting purpose, we are considering all those details and we are amending respective transactions into in books of account. That's it. Physically, we are not transferring anything. Physically, we are not processing anything. We are just creating accounting entries. We are just creating records. We are amending records. We are changing the status. We are amending our books of account and we are maintaining the records. But eventually, like the shares, when we get the shares, they even transfer shares from one demat to another. So it means that shares are even receiving in a demat account. And when we talk about funds, the funds will be received in our bank account, bank to bank. But we are considering that at this point of time we have this much value, at this point of time we have this much value, and we are matching that our accounting values with the bank accounts or maybe the demat accounts, and on the basis of that we are again doing our business or running our business operations. But entire mess we are creating for own accounting purpose. नींद आ रही है?
नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ ना, बताता हूँ। जो एक चीज मैंने। हम्म। अरे वो सब, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। सॉरी, ये एजेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये पीडीएफ में ही होता है, एजेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो। हम्म। हम्म। दिखेंगे ना, उसके अंडर वो अपने अपने नाम्स दिखेंगे, जैसे कि 71 है तो 71 के नीचे बायर का, 72 के नीचे सेलर का, ये अपने अपने ऐसे नाम दिखते हैं। अरे अपना अपना नहीं, अपना अपन मंगवा रहे दूसरे का, अपन क्या करते कि अपनी डिटेल्स देके, जैसे कि तुम कंफर्म कराते वो डिटेल्स, तो वैसे वो भी कंफर्म कराते हैं कि किसको पेमेंट गई, इनको ही गया क्या। एंड तो मैच होने के बाद ही वो अपनी डिटेल्स दे देते हैं ना। हम्म। अरे बाबा, कॉन्ट्रैक्ट नोट ही एक एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें सैलरी आता है तो क्या उस पे कंपनी का नाम नहीं आता है? तुम्हें ऐसे तो कभी हुआ है? कभी मैसेज मैसेज देख लेना कभी। हाँ, तो मैसेज ही यही है, कुछ अलग नहीं है, तो इसको अलग तरह से ट्रीट मत करो। ये हर हर डिटेल्स तुम्हारी वहां पे अवेलेबल होती है, डेबिट क्वांटिटी, क्रेडिट क्वांटिटी, ट्रेड टाइप, इंस्ट्रूमेंट, हर चीज। एंड अगर नहीं होती है ना, सो यू कैन नॉट कंसिडर दैट एज अ पेमेंट कॉन्फर्मेशन, सिंपल। देयर इज अ कैच। If you are not able to match those instructions with your trade, it means that instructions is not for your trade. Simple. As simple as that. ट्रेड डिटेल्स, नॉट नंबर्स। डिटेल्स, उसमें जितनी भी डिटेल्स है ना, वो मैच होनी चाहिए, क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, इश्यूर ने मैच होना चाहिए, आइजीन। हाँ, तो उसमें नंबर्स नहीं होते, प्रोबेबली उसमें होता है ना कि डिटेल्स होती है, ट्रेड डिटेल्स होती है पूरी, आइजीन होगा, डेबिट या क्वांटिटी डायरेक्शन होगा, कैश कितना है वो होगा एग्जैक्टली exactly। देन तुम्हारा, हाँ, यस, देन एग्जैक्टली, देन काउंटर पार्टी नेम होता है। तो वो पूरा, वो पूरी डिटेल्स होती है, तो वो मैच हो रही है मतलब तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक एक दो नहीं होता। रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा उसे। इट्स बाय डिफॉल्ट इन अ प्रोसेस। तुम पीडीएफ दो, तुम्हें कुछ भी करो, उसको स्नीप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में लेके यहाँ पे सेव कर दो, लेकिन दैट शुड बी देयर। If tomorrow any teams comes to you and ask why did you settle it, so you can tell them, hey, I have a backup. See this backup, on the basis of that I have settled it. अगर बैकअप नहीं है, तुमने एज्यूम कर ली कि ये किसी दूसरे ही ट्रेड्स के थे, तुमने बोला कि नहीं तो ये इसके इसी ट्रेड्स के थे, तो क्या फिर? एंड फिर दोबारा कोई आएगा तो फिर वो एस्केलेशन की तरह हो जाएगा कि भाई तुमने तो गलत ट्रेड सेटल कर दिया, क्योंकि उसका तो था ही नहीं है। अभी देखो, दो चीजें, अगर तुम्हारे कंपनी में दो अलग अलग टीम्स है, सेटलमेंट अलग है और कैश टीम अलग है, तो तुम्हें उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी तरफ आएंगे, क्योंकि वो मैचिंग कर रहे हैं एक्चुअली पेमेंट्स वहां पे। हाँ, तो रिव्यू करना है, तो रिव्यू करना है तो तुम्हें खुद ही मिलेगा ना डिटेल्स, अगर मिल रहा है तो फिर तुम्हें दो ही ऑप्शन से।
तुम्हारे यहाँ पे कैसे डिस्क्रिपेंसी दिखेगी और तुम रिव्यू क्या कर रहे हो रिव्यू में? इसे कंफर्म करा लो, मिडिल ऑफिस टीम होती तो उनको भी सेम इंस्ट्रक्शंस आते, क्योंकि उनको भी एक अपना प्रोजेक्शन क्रिएट करना होता है अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने के लिए, तो वो भी तुम्हें कंफर्म करा सकते हैं, अरे हमें भी नहीं आया। अगर वो नहीं बोलते तो वो ब्रोकर के पास जाएगा, या फिर हर एक अकाउंट के लिए डेडिकेटेड क्लाइंट सर्विस टीम एलोकेट होती है। उनके पास पूरा कॉन्फर्मेशन होता है, पेमेंट आया नहीं आया, आने वाला है नहीं आने वाला है, ट्रेड कैंसिल हो गया नहीं हुआ, हर चीज रखते हैं वो। नहीं होता है तो डायरेक्टली ब्रोकर के पास जाएंगे। हाँ, तो वो फिर उनको बोल दो इतना कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, इसका पेमेंट नहीं दिख रहा है, कैश नहीं दिख रहा है, ट्रेड सेटलमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट आया है बट कैश ही नहीं दिख रहा है, तो कैसे करूँ मैं, फंडिंग नहीं दिख रही वहां पे। तो बोलेंगे ठीक है वेट, तो जाएंगे वो, उनको भेज दो, वो रीच आउट करके बोलेंगे कि यस आ रहा है, पेमेंट आने के बाद कर दो। देन वेट टिल टाइम, टिल यू गेट अ पेमेंट इन योर अकाउंट। हम्म। एंड अगर वो, हाँ क्योंकि देखो कैश टीम वाले रहते हैं ना, बहुत अलर्ट रहते हैं, याद रखना हमेशा, क्योंकि उनका एक्चुअली में उनके यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है ना, तो उनको एक्चुअली ट्रांजैक्शंस मैच करने की बहुत घाई होती है। अगर वो नहीं मैच करते तो वो नहीं, द रीजन आई टेल यू, अगर वो मैच नहीं करते हैं ना तो उनके कैश फ्लो अच्छे से जनरेट नहीं होते, क्योंकि उनको रिपोर्ट जनरेट करना होता है कि कितना एंडिंग ऑफ द डे बैलेंस कितना बचा है और बिगिनिंग ऑफ द डे बैलेंस कितना बचा है। तो ये चेंज उनको लिए जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट हेज फंड मैनेजर को जाएगा, उसके बेसिस पे हेज फंड मैनेजर अपनी इन्वेस्टिंग प्लेस करेगा नेक्स्ट डे। हाँ, तो तुम अगर ना भी जाओ ना तो वो लोग काटेंगे आके, तुम्हें खाएंगे आके कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हें कुछ मिला है क्या इसका। नहीं है तो डायरेक्टली क्लाइंट सर्विस के पास जाएंगे, भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, हम मैच नहीं कर पा रहे, तो वहाँ ट्रेड सेटल नहीं हुआ, यहाँ पे तो ये दिख रहा है वो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बताओ जल्दी क्या है। तो उनको घाई होती है, उनको टाइम होता है 10 बजे से पहले, मार्केट ऑन होने से पहले उनको बिगिनिंग ऑफ द डे बैलेंस सेंड करना होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद एंड ऑफ द डे बैलेंस सेंड करना होता है। दोनों रिपोर्ट हेज फंड मैनेजर्स को डेली जाते हैं, हेज फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, प्राइवेट इक्विटी वाले हो, इनको डेली जाता है। और डाउट्स, और कुछ है बताओ, एक भी डाउट मन में मत रखो, जो पूछना है पूछो, आई एम ओपन टू आंसर टू योर क्वेश्चंस। यस, यस बनाने, अरे होता ही है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्रोसीजर जो होती है ना, तो वो चेकलिस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट, दैट्स इट। फॉलो एंड सेव इट, जैसे तुम्हारे उस फंड का हुआ देखना, तो उसी को सेव कर दो, फंड नंबर डाल दो सेव कर दो, फंड नंबर डाल दो सेव कर दो, हाँ मैंने देखा था ये, मैंने देखा था ये, मैंने चेक किया ये ऐसे। जैसे कि एंश्योर कैप स्टॉक एक्टिविटी, चेक फॉर एनी बैकडेटेड कैप स्टॉक, चेक टू एंश्योर दैट एंडिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स विद ट्रांसफर एजेंसी रिपोर्ट, ये ऐसे चेक्स होते हैं बनाए वाले, ये पूरे चेक्स है, चेक्स पेंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड रिसीवेबल रिडेम्पशंस और पेएबल्स और देयर बैलेंसेस, तुमने सब चेक कर दिए। अब जब सब चेक कर दिए तो तुम्हारे लिए बचेगा क्या, तो वो क्लोज ही करना है ना, फिर जस्ट क्लोज इट। अगर कहीं मैच नहीं हो रहा है, कौन सा चेक मेट नहीं हो रहा है, कौन सा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, सो इट मींस इन दैट केस यू नीड टू एस्केलेट इट, you need to take appropriate action on that particular transaction or on that particular uh, discrepancy or breaks whenever you see, right?
एंड अगर हमेशा अगर कोई पूछता है कि फिर अब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और एक सवाल मैं मतलब यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई पूछता है कि भाई अगर ब्रेक देखते हो तो क्या करोगे, ये देखोगे तो क्या करोगे, इसका क्या एक्शन होगा, ठीक है, हर एक का कौन से भी प्रोसेस होने दो, ठीक है, कौन से भी प्रोसेस होने दो, हम कोई चांद पे नहीं जाते कि अलग सा कुछ करने के लिए। अपना फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू इट, देन इन्वेस्टिगेट, then report with appropriate evidences and supporting documents. Then here you can expect two scenarios. One, they can confirm to take the actions from your end. So it means action, or else they can confirm. So it means you can take a confirmation for action, then action, and again report it. This is the steps or life cycle of a break resolution. That's it. Exactly. 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 Yes, action and then again report. Yes, it has been action or report, something like that. Yes, I have resolved it to close it. This therapy apply to all kinds of breaks with all the processes. There is no other procedure in place. Sometime, like suppose you're working with corporate action and there efficiency breaks directly, you will have to take action on it. That's it. You or else your client. Either of the one, you will have to take action. Done, understood. अरे नहीं, मैंने कॉर्पोरेट एक्शन मैंने ज्यादा काम नहीं किया, बट कॉर्पोरेट एक्शन के जैसा काम मैंने कहीं देखा नहीं है, ऑनेस्टली। ज्यादा नहीं किया मैंने, बट जितना भी काम है ना, अगर तुम्हें ब्रेक रेजोल्यूशन सीखना है ना, यू शुड ज्वाइन द कॉर्पोरेट एक्शन। वहां पे तुम्हारी मतलब लग जाएगी, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। बट उसे तुम जो सीखने को जो मिलेगा ना, ये कभी, अभी मैं यहाँ पे भी काम करता हूँ, जितना एक्सपर्टी मैंने 6 महीने में, अभी तीसरा ये ट्रांजिशन है मेरा, थर्ड ट्रांजिशन में 1.5 साल में कर रहा हूँ, नया क्लाइंट है। इतना बैक टू बैक थर्ड ट्रांजिशन पे करना, बिठाना, उसको डिप्लॉय करना, रिलीज करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। मैं प्रोसेस लेवल पे कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं। अरे थर्ड प्रोसेस है मेरी। पहले कैश रिकॉर्ड मैंने कर दिया, देन उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री कर दिया, ट्रेड प्रोसेसिंग, अभी मिडिल ऑफिस का ट्रांजिशन कर रहा हूँ। अभी फंड अकाउंटिंग के ट्रांजिशन के लिए अभी ये डिप्लॉय हो जाएगा 2-3 महीने में, फिर वो मैं दूसरा हाथ में ले लूंगा। सो इट्स नॉट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने काम किया हुआ है तो मुझे पता है, और मैंने कई सारे प्रोसेस एक्सपर्ट के साथ भी मैंने हर चीज़ डिस्कस करी है, मैंने देखा भी है वो क्या करते हैं, कौन से एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कई सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। तो इंडस्ट्री में ये थेरेपी के अलावा कुछ है ही नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन का मैं इसलिए देता हूँ एग्जांपल, ताकि कॉर्पोरेट एक्शन तुम्हें जितना इजी लगता है उतना है नहीं है, जितना सिर्फ नाम कॉर्पोरेट एक्शन है, बट हाँ। हाँ, अभी वो भी तुम्हें मैं बताता हूँ। एक एक नहीं, नहीं पूछेंगे तुम्हें। तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ। जो कॉर्पोरेट एक्शन का प्रोसेसर है ना, उसे वो चीजें पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो जो हेज फंड मैनेजर्स है वो कभी कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेस नहीं करते साले वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ वैलिडेट करते हैं।
क्या आया क्या नहीं आया, ब्रेक उसको दिख रहा है तो उसको वही कॉर्पोरेट एक्शन टीम को एस्केलेट करो, रिव्यू करो, उनसे करवा के लो, एंड देन उसी को कंसिडर करके प्रोसेसिंग कर दो, अपने एनएवी प्रोड्यूस कर दो। एग्जैक्टली। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। अरे वो तो वो छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं डोंट वरी, जितनी क्रिटिकल चीजें है ना, बस अभी तक का समझ में आ रहा है ना, एंटायर पिक्चर कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या नहीं करता है, कैसे होता है। हम्म। नहीं ना। अरे देखो, एग्जैक्टली सिनेरियो देने पड़ेंगे, देखो उसके हर एक के केसेस होते हैं, हर मतलब इस केस में क्या हो रहा है, उसकी थेरेपी क्या है। अभी तुमने बोला कि वैलिडेट करूंगा, हो गया नहीं ना भाई, इतना वैलिडेट करके इजी था तो फिर तुम्हारे 10 साल 15 साल के एक्सपर्टीज की वहां पे जरूरत है ही नहीं है फिर, इतना अगर इजी टास्क है तो। मैं बोल रहा हूँ ना, कॉर्पोरेट एक्शन इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। पहले तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं बात कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, लगेगा जैसे ट्रेड प्रोसेसिंग में फिर भी बाइंग सेलिंग होती है तो ये दिमाग में जाता है कि हाँ बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, तो मैं बाय कितना हुआ सेल कितना हुआ उसका वैल्यू ले रहा हूँ, वो ऐड कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से उसे डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा पर यूनिट निकल जा रहा है, यही होता है ना। हाँ, बट एक कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है उसके ऊपर, बट एंड वो भी कौन से आ रहा है। जब ब्रेक आता है तो ब्रेक आने के बाद दिक्कत ये होती है कि इजीली ब्रेक तुम्हें रिकंसाइल नहीं होता है कि ये कॉर्पोरेट एक्शन का ही है या फिर किसी और का है, और है तो भी कौन से कॉर्पोरेट एक्शन का है, एंड कौन से है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है फिर। ब्रेक सिस्टम में दिखता है तुम्हें, जो जो भी सिस्टम तुम अकाउंटिंग का यूज करते हो पेमेंट का स्पेशली, जैसे कि इंटेली मैच है, वो इंटेली मैच में दिखने लगता है ब्रेक। ब्रेक यानी कि सिंपल, हमेशा अभी एक ब्रेक वर्ड जो हमेशा तुम्हें सुनाई देगा, ब्रेक, डिस्क्रिपेंसी, अनमैच ट्रांजैक्शंस, ये सबके मीनिंग सेम है, ठीक है, सेम ही है, बोलने का तरीका है ब्रेक। हमेशा ब्रेक ब्रेक मुझे बोलते थे तो समझ में नहीं आता था कि ब्रेक क्या बोलना चाहते हैं वैसे, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ये ऐसी चीजों के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे पता है कि ब्रेक ब्रेक जब करते तो हाँ ब्रेक, बट यही याद रखना है कि कुछ ना कुछ अनमैच चीज है इसलिए हम उसे ब्रेक कह रहे हैं, दैट्स इट। वो हो सकता है कि स्टेटमेंट मिसिंग है, लेजर मिसिंग है, या फिर ऐसी अमाउंट आई पड़ी हुई है सस्पेंस अकाउंट में, ऐसा ही कुछ है। हर बार हर चीज हर बिगिनिंग से करनी पड़ती है, बिगिनिंग से। हमेशा याद रखना है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरा रिपीटेटिव हो रहा है, नहीं, क्योंकि तुम पैसों के साथ डीलिंग कर रहे हो, तुम ऐसे कल किया था तो आज वैसे नहीं। हाँ, वो छोड़ दो अभी, नहीं नहीं वो छोड़ दो, वो मैं कॉर्पोरेट एक्शन में बताऊंगा, वो अभी मैं आई डोंट वांट टू मेक हाचपोच हियर इन दिस पर्टिकुलर, वो कॉर्पोरेट एक्शन में ही बताऊंगा मैं, मुझे बस अभी तक का ये कैश एक्टिविटी जहां तक होगी, मतलब अभी आज तुम्हारा डन एंड डस्टेड हुआ ये ट्रेड प्रोसेसिंग का, उसमें आज कुछ भी नहीं बचा, तो मुझे टिल टाइम बताओ। हाँ, ये यहाँ तक का मुझे बताओ कि यहाँ अभी अभी तक इंक्लूडिंग ऑल द डिस्कशंस वी हैव डन, सो तुम्हें कुछ चैलेंजेस है, कुछ भी है तो मुझे अभी यहाँ तक बता दो, मतलब मैं उसी इधर ही किल करना चाहता हूँ उस चैलेंज को और खत्म करना चाहता हूँ, कुछ भी रहने दो। ठीक है, अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ थोड़ी सी जनरल, एंड ये आज का यहाँ रुक जाते हैं, फिर कल से फ्रेश इसमें डायरेक्टली। मैं ट्रेड प्रोसेसिंग के बाद हाँ कॉर्पोरेट एक्शन लेना ही बेटर रहेगा। नहीं नहीं, कैपिटल एक्टिविटी मैं एंड पे लेता हूँ हमेशा, कॉर्पोरेट एक्शन पहले लेता हूँ, देन तुम्हारा कॉर्पोरेट एक्शन एंड डिविडेंड साइड बाय साइड दोनों एक साथ लेता हूँ मैं इवेंचुअली, क्योंकि दोनों एक ही है इनकम प्रोसेसिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे इजी जाता है तुम्हें कंपेरेटिवली बताने के लिए। हम्म। 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 हम्म।
तुम ठीक है, वेट 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 वेट, तुमने अगर ट्रेड एक्टिविटी यहाँ पे सीखी है तो ट्रेड एक्टिविटी रिलेटेड, खत्म बात। ठीक है, क्योंकि कैश, अभी इसके अलावा कैश किस में आता है? किसी में नहीं आता है, आता तो सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट में है। ठीक है, याद रखना हमेशा, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग इज द कोर बिजनेस एक्टिविटी, उसी में आता है कैश, और उसी से कैश जाता है, बाकी कहीं पे कैश नहीं आता। एक आता है, वो होता है तुम्हारा कॉर्पोरेट एक्शन, वहां पे कुछ अगर बेनिफिट्स वगैरह मिल रहा है तुम्हें इवेंचुअली, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल होल्डिंग, कैश में कुछ आ रहा है तो ही कैश आता है। हाँ, तो वो भी बताता हूँ तुम्हें, वो भी बाइंग एंड सेलिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, वो मैं धीरे धीरे जाता हूँ चीजें, इसलिए अभी जहां तक हमने यहाँ पे किया है, अभी क्या वहां पे भी यूनिट सेल ही करते हो ना यार, वहां पे है क्या लॉजिक? तुम मुझे बताओ, तुम किसी को बेच रहे हो, किसी से ले रहे हो, मतलब किसी से डेबिट होगा, किसी से क्रेडिट होगा, इवेंचुअली कैश आ रहा है, मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस का ही पार्ट है, दिया नाम उसको है तो उसका एक वजह है, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। बट अभी कैश हम जो भी सीखेंगे उस प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, बट एट द एंड, वंस वे डन विद एंटायर दिस सेशन, तो तुम्हें एक सिंपली होता है कि सिर्फ लिंक करना है, यस कैश मतलब इन सब का है, तो इन सब के लिए मुझे कैश एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये तुम खुद बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी अगर तुम कुछ अलग सा सोचोगे तो वो हमने डिस्कस भी नहीं करा है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट। हाँ, ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस मेजरली तुम्हें दिखेंगे कैश मैनेज करते हुए, फ्रंटियर, टीएलएम, इंटेलीमैच, स्पेशली मतलब ये, और कई इंटरनल प्लेटफॉर्म्स भी है कंपनियों के पास उनके खुद के, बट ये सेंट्रलाइज है सिस्टम्स पूरे अक्रॉस इंडस्ट्री, तुम्हें कहीं ना कहीं पे दिखाई देगा। तो इन सब में तुम्हें रिकॉन के लिए ये लोग यूज करते हैं, रिकॉन इन द सेंस कि कैश प्रोसेसिंग, जब कैश प्रोसेस होता है तो वहां पे दिखता है, यानी कि ये एक मेन बुक की तरह काम करता है, मेन बुक। एंड जो तुम्हारा खुद का अकाउंट होता है, खुद का यानी कि अगर तुम HSBC का अकाउंट है तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा खुद का अकाउंट होगा वो तुम्हारा सब लेजर की तरह काम करेगा। एंड जो CT का अकाउंट भी होगा वो भी सब लेजर की तरह काम करेगा। तो तुम्हें जब भी रिकॉन करना होता है, ये तीनों बैलेंसेस मैच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर 1000 है, ये तो कुछ इसको मेंटेन इसलिए करता है ताकि ये डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही मेंटेन करके रख देता है, जैसे कि डेबिट किससे अकाउंट से डेबिट हुआ, किससे अकाउंट से क्रेडिट हुआ, क्योंकि इसके अकाउंट में इवेंचुअली जो बैलेंस टैली है वो उसके अकाउंट में जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसका वो पैसा है ही नहीं है। उसने डेबिट किसको कर दिया? ये काउंटर पार्टी को, हो सकता है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये डेबिट है। ये लॉजिक को समझो, ठीक है, बहुत बार नहीं समझ में आता, जैसे कि यहाँ क्रेडिट हो रहा है मतलब यहाँ पे आ रहा है इवेंचुअली, और यहाँ पे जीरो हो रहा है, जो कि क्योंकि इसके अकाउंट से डेबिट हुआ है, फंड चला गया है ना। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी जो होता है, ये हो तुम्हारा कैश, ये हो तुम्हारा क्वांटिटी, क्वांटिटी इसके अकाउंट से जीरो होगा, सेम क्वांटिटी यहाँ जाके क्रेडिट में ऐड हो जाएगा, लेट्स से जो भी है। है ना? तो ये ऐसे रिकॉन तुम्हारा टैली होता है, क्योंकि दोनों को अगर क्वांटिटी दोनों के अकाउंट में दिख रहा है तो गया किसको भी फिर, हाँ, गया किसको फिर? क्योंकि एजेंट का उसमें कुछ भी है ही नहीं है, बस उसके अकाउंट में दिखेगा इतना कि किसके अकाउंट में क्या गया, तो एक्चुअली इसके अकाउंट में तुम्हें ये दिख सकता है, जैसे कि डेबिट, डेबिट इतना एंड क्रेडिट भी इतना, जैसे कि तुम्हारा रूल है ना वहां पे, डेबिट दी रिसीवर। तो यहाँ पे वो जब एजेंट मेंटेन करेगा तो वो कर सकता है, जैसे कि सिटी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ वैसे HSBC अकाउंट, इसलिए उसके अगर तुम कभी, तुम्हें अगर मौका मिला कि भाई चलो कि आई एम वर्किंग विद CT एंड आई एम लाइक हियर आई एम वर्किंग एज अ मिडल मैन बिटवीन फॉर द काउंटर पार्टीज, तो उसके बुक में तुम्हें ये भी दिखेगा। इसलिए अगर तुम ये अपना SOP में देखोगे ना एक पेज, यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि हम जो डिस्कस करते हैं चीज़ें वे कैसे काम करती है।
ये देखो तुम बोलते हो ना कि ये हमें एलोकेशन कैसे पता चलता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ये एंड्स विद दिख रहा है ना, ये हर एक इसका, जैसे कि इक्विटी डिविडेंड का नंबर है, बॉन्ड इंटरेस्ट का नंबर है, ऑप्शन का नंबर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का नंबर, हर एक के नंबर्स होते हैं एप्लीकेशन में। मॉर्गेज बैक एंड सिक्योरिटीज का नंबर है, हर एक का होता है, हर एक का। नहीं तो इतना डिफिकल्ट जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, 12 नंबर नहीं, नाम के साथ उसके आगे नंबर भी होता है, बट हमें और रटने के बाद वो आता है नंबर ही। हमें जैसे कि कैश बोल रहे हैं तो समझ में आता है कि ये इसका नंबर है। कोई बोल रहा है कि डेरिवेटिव के रिलेटेड ब्रेक है, तो मैं डेरिवेटिव का नंबर मैं, मुझे याद रहेगा, मैं डेरिवेटिव का नंबर डाल के मैं जाके चेक करूंगा। हाँ, एग्जैक्टली, ओपन हो जाए। करेक्ट। नहीं, वो रिपोर्टिंग में रहते हैं, रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग का जो नेचर होता है ना वो। हाँ, बट वहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन में लाइव ट्रांजैक्शंस दिखते हैं ना, कि भाई कैसे, कि आज क्या हुआ, जैसे कि नॉर्मली ट्रेड कुछ बाय किया है तुमने कुछ, तो ट्रेड एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे कि तुमने कोई ऑप्शन ट्रेड, ये जो ट्रेड्स होते हैं उसके नेचर तो तुम्हें पता ही है ना, जैसे कि ऑप्शन ट्रेड होता है तो वो दिखने में अलग दिखता है, एक्सपायरी के साथ दिखता है। देखो, वेट वेट वेट, ये सिस्टम ऐसे दिखता है, ये लाइव अकाउंट है, दिख रहा है, पोस्टिंग जर्नल्स वगैरह, तो ऐसे दिखने लगता है सिस्टम, कि आज डेट में क्या हुआ तो मुझे पता करना है। अब अगर यहाँ पे अभी देखोगे, तो ये पोर्शन, लेट मी ड्रॉ समथिंग, ये अकाउंट नंबर दिखता है कि कहाँ पे किसके अंडर ट्रेड्स हो रहा है, ये लाइव है। ये अमाउंट क्रेडिट, ये डेबिट, शॉर्ट टर्म करेंसी गेन ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब डेबिट का मतलब है कि यू हैव रिसीव्ड समथिंग, ऐसे। ये लाइव अकाउंट है, ये तुम्हें देखना होता है, ये तो लाइव है। लाइव में हम कुछ नहीं करते हैं, वी जस्ट रेफर इट एंड, एग्जैक्टली, रेफर हमारे जो हमारा एक बुक्स होता है ना, उसके साथ हम रेफर करेंगे इसको। लाइव मतलब यहाँ पर ब्रोकर के सिस्टम के साथ ये अटैच है, तो जो भी जितनी भी चीजें होती है यहाँ पे हो रही है, ऑनगोइंग बेसिस पे हो रही है, तो मैं देखता हूँ। हाँ, इसको एडिट कौन करता है, डेस्क वाले करते हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन टाइप देखोगे ना, ये एडिट किया हुआ है, ये डेस्क टीम एडिट करती है पूरी चीजें। ऐसे पता चलता है मैनुअल, ऑटो, जैसे कि ऑटो हुआ तो ऑटो सेटल, ऑटो ऑटो प्रोसेस भी होते हैं ना, डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू। मैन्युअली किया मतलब जो ओवरनाइट वगैरह आया था, तो जैसे अब ये फंड फंड का नंबर देखो यहाँ पे, ABCD, ऐसे नंबर्स भी एलोकेट होते हैं। ट्रांजैक्शन रेफरेंस एलोकेट होता है, हर चीज होती है, जैसे ट्रेस करने के लिए हजारों चीजें हैं, तुम इसके थ्रू पूरी चीजें ट्रेस कर सकते हो। और आगे देखेंगे अपन एक आधा दो। अरे नहीं नहीं पाजी, सुनो, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना, जो तुम्हें आता है डेबिट नहीं करोगे तो क्या कर, रूल के हिसाब से क्या है, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गेन हुआ तो रिसीव्ड ही होगा ना, गेन हुआ तो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फॉर्मूला तो आता है समझ में। ये बोलने के लिए बेसिक है, बट यहाँ पे ऐसे ही काम होता है इनका। ये सिर्फ हमें, हम उसके फोकस नहीं करते कि भाई चलो बहुत इजी है, उसको क्या कुछ है ही नहीं मतलब, बट एक्चुअली तुम्हारे 3 फॉर्मूला के अलावा अकाउंटिंग है ही नहीं यहाँ पे कुछ। उन्होंने उसी प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया हुआ है। और आगे चीजें मैं दिखा देता हूँ एक तो। ऐसे ही काम होता है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज गौर, ये देखो जब ये रिकॉन की बातें करो अभी, रिकॉन में कैसे होता है, देखो तुम्हारा मेन लेजर, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मेन लेजर, सब लेजर, मेन लेजर। जैसे कि मेन लेजर, मेन लेजर ये अकाउंटिंग वर्ड है, बट ये एक बुक होता है, तुम्हारा खुद का बुक है, मेन बुक है।
एंड उसके अंदर जितने भी तुम्हारे अलग अलग बुक्स होते हैं, ये मेन बुक है, तो इनका बैलेंस एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस आता है तो डिफरेंस क्यों आता है, वो चेक करना है, रेक्टिफाई करना है, पूरा डिफरेंस रेक्टिफाई करना है, पूरा डिफरेंस निकालना है, देखना है। ये रिकॉन ही है, रिकॉन रिकॉन में ही है। इनकम प्रोसेसिंग का रिकॉन कर रहा है बंदा, ये देखो, ये ना फिक्स्ड इनकम में रिकॉन कर रहा है वो। ये नहीं, मैं रिकॉन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हें एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो रिकॉन हमने जो चीजें देखी है प्रैक्टिकली सिस्टम में कैसी दिखती है, कैसे रिपोर्ट्स होते हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी। कैश, जैसे कि कैश में भी ऐसे ही रिपोर्ट्स होते हैं, कैश में भी यही चीजें। अरे यार, क्यों कर रहा? हेलो, बोलना। नहीं, 15 मिनट मध्ये करणार, बोल ना। ओके, ठीक आहे ना, मग उद्याला सांगून दे। उद्याला सांगून टाकते अलोकेट करून घेत नाहीयेत म्हणून। ठीक आहे, 10 मिनिट मध्ये करतो मी, चल। ओके, ठीक है। ये ऐसे रिकॉन जब करते हैं तो दो बैलेंसेस हमेशा रेफर करते हैं, दो चीजें देखते हैं हम, हमेशा दो चीजें हमारे पास होती है। तो कैश कहीं कहीं मतलब बहुत जगह पर कैश आती है, तो कैश की बातें अब ट्रेड प्रोसेसिंग के हिसाब से हमने देखा है, तो उसको वहीं पे रहने दे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ चीजें कि जब रिकॉन बनता है तो कैसे बनता है, रिकॉन दिखता है तो कैसे दिखता है, कैसे करते हैं, डिफरेंसेस कैसे जनरेट होते हैं, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। तो वो सेम लॉजिक, सेम थेरेपी कैश टीम में भी होती है, बट नेचर जो होगा ट्रेड प्रोसेसिंग के हिसाब से होगा। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एमबीएस, शॉर्ट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल, ये चीजें दिख रही है उसमें। मुझे और एक चीज दिखानी थी, जैसे कि टैक्स होल्डिंग, फिक्स्ड इनकम। मतलब ठीक है, एनीवेज ऐसे बुक्स दिखते हैं तो चीज़ें वहीं से इजी, हम यही के साथ मतलब इसी बुक्स के साथ हम रिकॉन करने की कोशिश करते हैं, पूरा हमारा जितना भी रिकॉन है, एंड मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर मैच होती है चीज़ें तो ठीक है, नहीं मैच होती तो इसमें ब्रेक दिखेगा तुम्हें, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन का है। अभी इस पे तो ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट एक्शन की है नहीं है, बट दिखती भी वैसी ही है। जैसे कि ये जो लाइन दिख रही नहीं, लाइन में होता है छुपा हुआ पूरा, कि ये जैसे कि इनकम नाम दिखाई देगा वहाँ पे या फिर स्प्लिट नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसी नाम से हम लोग देखते हैं कि हाँ यार, ये जो बेनिफिट आया हुआ है, ये तो मुझे स्प्लिट का दिख रहा है, या फिर ये मुझे इनकम का दिख रहा है। तो इनकम का है तो इनकम टीम, स्प्लिट का है तो कॉर्पोरेट एक्शन टीम। अगर कोई नॉर्मल ट्रेड प्रोसेस दिख रहा है बट उसी का है, उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो वो ट्रेड प्रोसेसिंग का बंदा। तो ऐसे चीज़ें रिकॉन होती है एंड एक्शन भी करने के लिए जाती है, ठीक है। तो ये लाइव बुक में, एक लाइव बुक में चीज़ें चलती है, तो दूसरी शैडो अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना, तो उसका प्रोजेक्शन वी ट्राई टू क्रिएट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि लाइव नहीं होता है वो, बट उसको लाइवली मेंटेन किया जाता है इस बुक्स के साथ, पूरा प्रोजेक्शंस वहां पे दिखे, ताकि क्योंकि वही बुक्स हम रेफर करते हैं पूरे रिपोर्ट जनरेट के लिए, रिपोर्ट्स प्रिपरेशन के लिए, बाकी सब प्रोसीडिंग के लिए वी रेफर दैट बुक्स। जैसे कि तुम्हारा खुद का, अगर तुम कुछ खर्चे करते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो तुम किसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो? जो बैंक स्टेटमेंट है उसी में रिकॉर्ड करने के लिए बैंक्स को बोलोगे, या फिर खुद का अकाउंट भी मेंटेन करोगे? खुद का भी करोगे ना। हाँ, तो सेम वे, जैसे कि तुमने खुद के अकाउंट में से म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, इक्विटी मार्केट को दे दिया, कुछ एक्सपेंडिचर्स करते हो तो मुझे दे दिया, मेरा फीस दे दिया, ये सब चीज़ें, या फिर तुमने हॉस्पिटल को दे दिया,
ये तुम अपने, एंड ये थ्रू जितने भी पूरे एक्टिविटीज है तुम अपने बैंक के थ्रू करते हो, राइट? क्योंकि एनीवे ट्रांसफर फंड तो बैंक के थ्रू ही होता है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा मेन बुक होता है, क्योंकि हर चीज तुम इसी बुक्स के, बैंक्स के थ्रू ही करते हो ट्रांसफर। ये हुआ तुम्हारा मेन बुक। एंड बट अगर जब तुम ये एक्सपेंसेस तो मेंटेन करोगे, तो ये बैंक का काम है, बैंक तो कर ही रही है, बट तुम्हें भी इतने सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे खुद के अकाउंट में रिकॉर्ड करने चाहिए ना, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर तुम अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सको। एम आई राइट और नॉट? लिंक हो रही ना चीजें, कि जैसे पर्सनल चीजें भी हम हमारे लाइफ में बहुत सारी करते हैं, बट मिस यही करते हैं कि लिंक करना भूल जाते हैं, कि यार यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ऐसे ही चीजें होती है यहाँ पर भी। तो ये लाइव बुक होता है, ये इसको पासबुक कहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है कहने में। एंड बाकी सारी जितनी भी चीजें होती है, कॉर्पोरेट एक्शन, इनकम प्रोसेसिंग, रिडम्पशन, विथड्रॉल, ये सब तुम्हारी सब एक्टिविटीज है जो इसी अकाउंट के थ्रू आती जाती है। तो वो अपने अपने हिसाब से वो अकाउंट को मेंटेन करना है, एंड उसका बैलेंस इसी के साथ मैच करना है, वेरीफाई करना है, एंड ऐसे ही बिजनेस को रन करना है। डन एंड डस्टेड, तुम्हारा यही चीजें चलती है, और इसके अलावा अलग सा कुछ नहीं होता है। यही होता है, बाकी कुछ एक्चुअली में हम कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअली में कौन करता है? क्लियरिंग हाउसेस में जो बैठे बंदे, जो बैंक में बैठे कैश पेमेंट प्रोसेसिंग करने वाले बंदे, कैश पेमेंट मतलब एक्चुअली जो ट्रांसफर करते हैं फंड बैंक का अकाउंट एक्सेस करके, ये अकाउंट, ये वाला जो दिख रहा है ना बुक, ये, तो वो बंदे एक्चुअली पेमेंट प्रोसेसिंग करते, बट रेस्ट 90% पीपल दे आर जस्ट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बिजनेसेस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट्स इट। वो ईयर एंड पे ही तुम्हारे एक्चुअली जो चीजें होती है ना, जो ईयर एंड होता है ना, ईयर एंड, वहां पे एक्चुअली रिकॉन होता है अच्छे से। हम्म, वो एक्चुअली चीजें तुम्हारी अच्छे से रिकॉर्ड होती है वहां पे, क्योंकि तुम्हें इवेंचुअली मतलब एंड पे ही तुम्हें हर चीज मिलती है ना, फीस मिलती है तुम्हें, जितना भी बैलेंस वगैरह दिख रहा है वो तुम्हें अच्छे से ये करना है, मतलब हर चीज वहां पे करनी है, अच्छे से करनी है। तो वो उधर ही होता है, बट रेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे दो तरह की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। अभी ये अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब खींचना नहीं चाहता हूँ, बट एक तुम्हारे क्यूरियोसिटी के लिए बताऊंगा। एक होता है कैश बेस अकाउंटिंग, दूसरा होता है अक्रूवल बेस। कैश मतलब जितना रिसीव्ड और पेड है, ये रिसीव्ड पेड प्लस जो अभी तक मतलब अर्न हुआ है बट आया नहीं है, तो वो भी रिकॉर्ड होता है इसमें, ये दोनों प्लस ये। बस यही चीजें होती है, बाकी इसके अलावा कुछ भी अलग सा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ अलग सा प्रोसीजर भी एग्जिस्ट नहीं है। कोई ज्ञानी कहेंगे, क्योंकि उनके कंफर्ट जोन में, अगर वहां पे अगर कुछ करते रहेंगे अलग, तो बोलेंगे नहीं ऐसा भी होता है, अभी होता है बोलो। बट जो सेंट्रलाइज और जो जेनेरिक प्रोसेस फ्लो है, जो जेनेरिक चीजें हैं, इसके अलावा कुछ अलग नहीं होता है। इसके अलावा अलग होगा चीजें तो कोई एडवांसमेंट रहेगा, जैसे कि हर चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, बस 10% वर्क बच रहा है जो हम देखते हो, रिपोर्ट जनरेट करते खत्म। सब ट्रेड सेटल ऑटोमेटिक हो रहा है, कैश पेमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, तुम्हारा रिकॉन ऑटोमेटिक हो रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये हो सकता है आने वाले, अभी हो रहा होगा या फिर आने वाले समय में बहुत ज्यादा तौर पर होगा, पर इसके अलावा अभी जो चल रहा है करंट लेवल पे कुछ भी अलग नहीं है। इतनी चीजें, जब जितने सिनारियोज मैंने डिस्कस करे हैं उतने तो मतलब बंदे, जैसे मैं, मेरा नेचर पहले से वैसा ही रहा है कि मैं सीखता रहता हूँ चीज़ें, तो इसलिए मुझे पता है। मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ खुद के दिमाग में, और मैं नोटबुक में भी, तो बहुत बार, तो इसलिए मुझे याद भी रहता है जहां जहां मैं काम करता हूँ या फिर किसके साथ भी जो डिस्कस करता हूँ वगैरह। बट इतना इतना एक इंटरव्यू में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, ये जब तुम एक्चुअली वहां पे ज्वाइन करोगे जाके, तब चीजें समझेगी ऐसी, मतलब कि भाई चलो हाँ,
ये सही है, तो हमने ये सीखा है, तो ये सीख, तो उधर भी मतलब उनका ट्रेनिंग हेल्प नहीं करेगा, बट ये तुम्हें ट्रेनिंग हेल्प करेगा, प्लस वो जो सिखाएंगी वो भी अच्छे से समझेगा। बट इंटरव्यू के लिए यहाँ तक की एक्सपर्टीज इनफ है, एक बड़े रोल के लिए भी। अरे देखो, प्रोसेस सीखने के लिए मिनिमम 2 इयर्स लगते हैं, अगर कोई बंदा फास्ट है तो 1 साल तो मिनिमम लगता है, क्योंकि जो तुम्हें ट्रेनिंग मिलती है कंपनी में, जो बंदे तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने थ्रू आउट द ड्यूरेशन, वो सिर्फ तुम्हें 25% एक्सपर्टीज डिलीवर करते हैं। दिस इज इनफ टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस विद एरर। मतलब 75% जो है वो सेल्फ, मतलब बंदे थोड़ी सी और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देके चीजें ढूंढ के ये वो करके चीजें और थोड़ी सी बढ़ा के 50% तक आते हैं। एंड 50% भी अगर एक्सपर्टीज है, मतलब तुम बिजनेस अच्छे से रन कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अरे उनको पता, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, उनको पता नहीं होता है ना, चीजें यही है कि उनको जिसने ट्रेनिंग दी वो बंदा हाफ नॉलेज वाला था, उसने बोला कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही कर, दूसरा क्यों पूछ रहा है मुझे, बंदा ऐसे ही बोलता है। अगर तुम ट्रेड प्रोसेसिंग में काम करो, अभी मैं बहुत सवाल पूछता हूँ, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, जब मेरी पहली कंपनी थी मैं पूछता था जहां पर मैं काम करता था रिकॉन के लिए वगैरह, मैं ऐसे पूछता था ना, कॉर्पोरेट एक्शन ऐसे क्यों, तो बोलता था तेरा काम वो है क्या, हम तो यहाँ रिकॉन करते हैं ना, रिकॉन का ही देख ना, तो क्यों म्यूचुअल फंड ये अपना कॉर्पोरेट एक्शन ट्रेड प्रोसेसिंग ये क्यों जानना चाहता है, उसकी जरूरत नहीं है, बोलता था बंदा। क्योंकि उसको जिसने ट्रेनिंग दी उसने भी वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, कुछ भी मत बता, या फिर बताया नहीं रहेगा। देखो आने वाले 15 to 20 years, country like India, there will be a massive scope for a अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस। यानी अभी तो ये ग्रो हो रहा है, जिनको अपना करियर बनाना है तो वो लोग अच्छे से अपने खुद को डिप्लॉय कर सकते हैं इन बिजनेसेस में, हेज फंड हुआ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हुआ, अदर लोन ऑब्लिगेशंस बिजनेसेस हुए, इन सब में। एंड पैसा भी तगड़ा मिलेगा 10-20 साल के बाद, जब पूरे लोग एक्सपर्ट मिलने लगेंगे तो फिर इंडस्ट्री और कोई और मार्केट ढूंढेगी जाके, और डेवलपमेंट जब एक नीच स्टेज पे आती है तो वो बिजनेस फिर से डाउन, मतलब डाउन होता जाएगा, बट आने वाले 20 साल तक तो इसमें तगड़ा स्कोप रहेगा। हाँ, बट एक